India, हमारा प्यारा भारत, as on the day I'm making this video, is ranked number 5th in the whole world in terms of GDP. Soon we'll overtake Japan and become number 4th in the whole world, as per the Forbes India World Ranking report. I remember when we crossed UK, there was a sense of achievement among us Indians. India overtakes UK to become the 5th largest economy in the world. In the 75th year of freedom, India overtakes its colonizers. अब तो 78 years हो गए actually. हमें बहुत गर्व है ना इस देश पे. In the 78th year of freedom, India is the 5th largest economy, the largest democracy. This year, India's overall exports are about to hit $780 billion, and still a woman can't feel safe at a workplace. They have to sacrifice their dreams and careers because of our unsafe environments. We live in a country where a politician's son can ram a speeding car into a normal pedestrian and drag that pedestrian for 1.5 kilometers even after being told by the passerby to halt the car, of course under the influence of heavy alcohol. Then manually removing the body from the car and then fleeing the scene as if nothing happened. And nothing will ever happen to him, to be honest. This is the true thing, this is what happens in India. 24 years old Meher Shah, the shameless brat of a politician, was booked under the culpable homicide not amounting to murder, among other charges. How the hell in the world this is not murder? You drag a person for 1.5 kilometers before and then manually removing the body from the car and then fleeing the scene. That person's life could have been saved. How the hell is this not murder? We live in a country जहाँ एक अमीर बाप का लड़का अपनी 2 करोड़ की पॉर्श से 2 लोग जो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं उनको हिट करता है at the speed of 160 kilometers an hour, of course under the influence of heavy alcohol, while the family of the teen bribes doctor, kidnap and forces their own driver to take the blame. Literally the blood samples were thrown in the dustbins. At 3 AM in the night, politicians पहुंच जाते हैं police station. According to some reports, pizza party चल रही होती है अंदर. While at the same time, the victim's family is in disbelief of what just happened. And you know what punishment does he get? He had to write a 300-word essay and do some community service with the traffic police. But एक अच्छी चीज़ यहाँ ये थी कि police had arrested the father and the mother of the child. But somehow, 1-2 महीने में all of the family is out of jail now. And believe me, in the next few months, what's going to happen is that child will be sent to UK or US for the study in the next 6-12 months. जब केस ठंडा पड़ जाएगा, nothing will ever happen to him. And बात खत्म. That's how it works in India. This is how we solve murder cases. We live in a country जहाँ एक foreign couple ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, वर्ल्ड टूर टाइप ऑफ थिंग, अपनी बाइक पे ऐसा सोच के निकले थे, रास्ते में हमारा प्यारा भारत देश मिल जाता है. एंड नाउ दे डोंट नो हाउ दे लिव द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ बिकॉज दे वर गैंग रेप्ड बाय 19 to 24 year olds. आई डोंट इवन वांट टू कॉल देम ह्यूमंस, बट व्हाट एज इज दिस टू डू सच अ हीनियस क्राइम? ये कंट्रोल की बात नहीं है. नो, समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग इन देयर अपब्रिंगिंग. एंड मैं ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ. आई मीन दे वर नॉट रेगुलर ऑफेंडर्स. इनफैक्ट इन लोग का पहला क्राइम था. व्हाइल अप्रोचिंग द विक्टिम, दीस क्रिमिनल्स वर स्पीकिंग इन इंग्लिश. So what went so terribly wrong in their upbringing? क्या ये कैसे environment में रहते हैं जहाँ domestic violence, physical abuse against a woman is a common thing? Do these people watch porn on regular basis? एक 12 साल की बच्ची स्कूल जाती है अपना एग्जाम देने के लिए, उससे पहले एग्जाम नहीं लिया जाता है, फिर घर भेज दिया जाता है बाय टीचर्स. ये पूछा तक नहीं जाता बच्ची से कि उसको एड्रेस पता है कि नहीं. लकीली रास्ते में उसे अपने दादाजी मिल जाते हैं जो उसे अपने घर ले जाते हैं. फ्यू आवर्स लेटर जब वो काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, देखते हैं कि बच्ची घर पे नहीं है, तो ही गोस टू द पुलिस स्टेशन टू फाइल अ कंप्लेन. वहाँ की पुलिस बोलती है 24 घंटे बाद आना. मजाक है क्या ये पता नहीं दैट फर्स्ट 48 to 72 आवर्स आर द मोस्ट क्रूशियल इन फाइंडिंग अ मिसिंग पर्सन. पूरे सिस्टम का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने. लगभग 700 किलोमीटर दूर बच्चे की सीसीटीवी फुटेज मिलती है उज्जैन से, जहाँ ये बच्ची सेमी न्यूड, कपड़े खून से लथपथ दिखती है मदद मांगते हुए घंटों तक, लेकिन कोई मदद नहीं करता. ये बच्ची लकीली एक आश्रम के बाहर पहुंचती है जहाँ के पुजारी उसकी मदद करते हैं. सोमवार के दिन प्रातःकालीन 9:26 पर मुझे अपनी किसी इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होने के लिए आश्रम से बाहर जाना था. जैसे ही मैं अपना वाहन लेकर के गेट पर पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे आश्रम से पश्चिम की ओर से मेन गेट से 20 फीट की दूरी पर एक बालिका अर्धभाग नीचे की ओर से कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ है. एक 28 से 30 लोगों की स्पेशल फोर्स बनाई गई जिन्होंने इस बच्ची के साथ जिसने भी शर्मनाक हरकत करी उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकाला. सवाल ये है कि क्या यही एक्शन पहले नहीं ले सकते थे? 24 घंटे वेट करने के लिए क्यों बोला? आज जब पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है तो तब जाके स्पेशल फोर्स क्यों बनाई गई? पहले बना लेते ढूंढने में. इस एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए स्पेशल फोर्स क्यों नहीं बनाई गई? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ मध्य प्रदेश में एक दलित लो कास्ट BA स्टूडेंट को मोलेस्ट किया जाता है बाय फ्यू इन्फ्लुएंशियल पीपल हु allegedly have connections with BJP. उन्हें थ्रेटन किया जाता है केस वापस लेने के लिए, बट जब ऐसा नहीं किया जाता तो इन ब्रॉड डे लाइट विक्टिम की बाइक की हत्या की जाती है. बड़े बाजार में एक बूढ़ी माँ को डिसरोब करके बुरी तरीके से मारा जाता है. कुछ समय बाद विक्टिम के अंकल जो विटनेस थे विक्टिम के भाई की हत्या में, उनकी भी हत्या की जाती है. एंड समहाउ मिस्टीरियसली जिस एम्बुलेंस में विक्टिम के अंकल की डेड बॉडी को ले जा रहे होते हैं, विक्टिम उस एम्बुलेंस से गिरकर मर जाता है. एंड मिस्टीरियसली समहाउ पता नहीं कैसे that day the ambulance was also running on an unusual route. पता नहीं कैसे. लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द होल वर्ल्ड की बात करते हैं. डर लग रहा है मुझे इस केस के बारे में बात करते हुए. ये है हमारी डेमोक्रेसी. पॉलिटिशियंस और उनके लोगों के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या?
मर्डर एंड रेप जैसे हीनियस क्राइम करके खुले में घूम रहे हैं ये लोग। ये है हमारा देश। बिहार में एक 17 साल की बच्ची का किडनैप किया जाता है, फायर फाइल होती है, कन्विक्ट को जेल में डाल दिया जाता है। कुछ ही समय बाद कन्विक्ट को बेल मिल जाती है एंड वो फिर बाहर निकल कर 17 साल की बच्ची का किडनैप करता है एंड रेप करता है फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ। किसको ब्लेम करें, जिसने उस बच्ची का रेप किया या फिर हमारी जुडिशियल सिस्टम जिसने ये बिना जांच किए कि कन्विक्ट को कोई रिग्रेट तो नहीं है टुवर्ड्स द क्राइम ही कमिटेड, या फिर कोई हेट्रेड तो नहीं है कन्विक्ट के मन में टुवर्ड्स द विक्टिम, ये बिना जांच किए उसे रिहा कर देना, बेल दे देना, ये है हमारा जुडिशियल सिस्टम। दोस्तों ये एक रैंट वीडियो नहीं है। इंडिया में ऑन एन एवरेज एवरी सिंगल डे 90 रेप केसेस आर रिपोर्टेड एज पर इंडियाज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। 1220 केसेस पर डे अगेंस्ट वुमेन that are reported, most of them domestic abuse, physical violence. Again, these are reported numbers. The real number probably is much higher. Question is कि क्या अगर बच्चे अपने फादर या मेल ऑफ द हाउस को देखते हैं अपनी वाइफ पर अब्यूज़ करते हुए, अपनी मदर पर अब्यूज़ होते हुए, तो डू दे इनहेरिट द सेम अब्यूसिव वैल्यूज एंड बिहेवियर्स? इस बैकवर्ड थिंकिंग को हमारी जनरेशन कॉल्स इट अल्फा मेल कल्चर, जहाँ औरतों पर अत्याचार इज कंसीडर्ड बीइंग कूल, इज कंसीडर्ड द वे टू शो लव एंड अफेक्शन टू योर पार्टनर। ये काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी कॉल्ड एनिमल। पीपल कॉल इट द मूवी फॉर अल्फा मेल्स। उस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ फीमेल्स को सिंपली ऑब्जेक्टिफाई किया गया। एक सीन में कहते हैं लड़की को अपने हाथों में पकड़ के रखना चाहिए एज इफ शी इज अ पोजेशन। थिंग्स लाइक इनफिडेलिटी फॉर अ वैलिड रीजन इज कंसिडर्ड टू बी फाइन, बट व्हेन शी सजेस्ट डूइंग द सेम ही थ्रेटन्स टू किल हर। वुमेन के अगेंस्ट ये थॉट रखना कि लड़कियों का दिमाग तो घुटनों पर होता है, या फिर ये सोचना कि लड़कियां तो सिर्फ खाना बनाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए बनती है, या फिर लड़का है तो रात भर बाहर घूम सकता है, लड़कियों का अलाउड नहीं है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारे थॉट्स आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं टू थिंक ऑफ वुमेन एज इन्फीरियर टू मैन। हम एनिमल मूवी की बात कर रहे थे ना। द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एनिमल वन सेड इन इंटरव्यू, यू कांट स्लैप ईच अदर देन देयर इज नो लव। आई मीन इनसे क्या ही एक्सपेक्टेशन रखोगे आप? If you don't have that physical demonstration of, if you don't have the liberty of slapping each other, then I don't see anything there. और अगर बाई चांस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और आपने कुछ म्यूजिक सुनने का सोचा, तो ये लिरिक्स है गाने के। गाने का नाम है ड्रीमम वेकअपम। लिरिक्स है गाने के टॉप टू बेसम कामासूत्रम साइजम मैटरम थिंकम वंडरम। गाने का नाम है आई एम अ हंटर। लिरिक्स हैं आई एम अ हंटर एंड शी वांट्स टू सी माय गन व्हेन आई पुल इट आउट बॉय द वुमन स्टार्ट्स टू रन। मतलब क्या लिरिक्स हैं भाई, अभी तो रुको आप। गाने का नाम है आ रे प्रीतम प्यारे। अच्छा प्यारा नाम है, प्यारा गाना होना चाहिए राइट। गाने के लिरिक्स हैं पल्लू के नीचे छुपा के रखा है दादू तो हंगामा हो, पल्लू के नीचे दबा के रखा है दादू तो हंगामा हो, सुबह को लेती है, दिन में लेती है, रात में लेती है। ये लिरिक्स है गाने के। शर्म आती है मुझे पढ़ने में भी, क्या क्या लिख रहे हैं, क्या मतलब है इसका, क्या सेंस बनता है इस बात का। जब हमारे सराउंडिंग्स, हमारा इन्वायरमेंट, जहाँ हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, वहाँ अगर हम ऐसी मिसोजिनिस्टिक मूवीज़ देखें, फॉर एग्जाम्पल एनिमल, जहाँ रणवीर कपूर रणवीर जगह करेक्टर प्ले करता है एंड उस करेक्टर को एज अ हीरो पोर्ट्रेट किया जाता है। जो भी लोग इन अब्यूसिव वैल्यूज़ को सही समझते हैं उनके लिए एक वैलिडेशन पॉइंट है। या फिर एंड्रू टेट जैसे लोग जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनको देख के लोग अपने घटिया थॉट्स को वैलिडेट कर रहे हैं। हनी सिंह बड़े पॉपुलर म्यूजिशियन है इंडिया में, उनके गाने का लिरिक्स है कुड़ियों को लगा है बुफे चाहे जो कर लो चूज। ऐसा पोर्ट्रेट किया जा रहा है जैसे शी इज नॉट अ पर्सन बट अ पोजीशन, एन ऑब्जेक्ट। उनके अलावा काफ़ी मूवीज़ में द सो कॉल्ड फनी डायलॉग्स, लेट मी जस्ट रीड इट टू यू, आप खुद ही जज करना। फ्रॉम द मूवी ग्रैंड मस्ती, बलात्कार से याद आया मेरी बीवी कहाँ है। फ्रॉम द मूवी कम्बख्तेश, मैरिज से पहले लड़कियां सेक्स ऑब्जेक्ट होती हैं और मैरिज के बाद दे ऑब्जेक्ट टू सेक्स। और यहाँ तो लड़कियों को कैसे देखना चाहिए ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। फ्रॉम द मूवी क्या सुपर कूल है हम। तुम लड़की में सबसे पहले क्या देखते हो, वो तो डिपेंड करता है कि लड़की आ रही है या जा रही है। एक कहावत है मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट। जब हमारी सराउंडिंग्स ही ऐसी है तो हम क्या वैल्यूज अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। फ्यू ईयर्स अगो आई रिमेंबर रीडिंग एन आर्टिकल एंड आई फेल्ट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर। यू रिमेंबर निर्भया केस, इतनी मूवीज़ बनी है इस केस पे, अगर फिर भी याद नहीं है तो इसमें कोई आपकी कोई गलती नहीं है। 90 से ज़्यादा निर्भया सफ़र करती है इंडिया में, कितनों को याद रख सकोगे। मैं फिर भी याद दिलाता हूँ। ऑन द डार्क नाइट ऑफ December 16, 2012, a 23-year-old physiotherapy intern was returning back home after watching a movie with a friend. She was brutally gang raped. When she tried to fight back, a metal rod was inserted into her internal organs, her private parts, and were ripped apart. At the hospital, the doctors informed the parents that only 5% of her intestines were left. I cannot even imagine this thing. She died few days later. The convicts out of 6, one died by suicide in jail, one was released after 3 years, other 4 were hanged. On the day they were hanged, Nirbhaya's parents said something.
Mother said, I hugged my daughter's photograph and told her we finally got justice. Father said, his faith in judiciary has been restored. When I was reading all this, I had this feeling like, how is this justice? Will they ever give their daughter back, this sweet little child? Can they ever go back to living like normal, like before? How is this justice? निर्भया कन्विक्ट के लॉयर का कहना है कि रात के 12 बजे लड़की बाहर क्यों घूम रही थी। उस माँ को पकड़ो जिसने उसे रात को 12 बजे बाहर रहने से मना नहीं किया। फिर तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। फिर उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप कि 12:30 बजे तक यही पता नहीं था कहाँ है बेटी, किसके साथ है, किस हालात में। निर्भया के कन्विक्ट का जब इंटरव्यू लिया गया, उसका कहना है ताली एक हाथ से नहीं बचती है। एक लड़की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है एक रेप में जितना एक लड़का है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। क्या बोलूँ मैं, मर चुके हैं सब, लेकिन मेरा खून खोलता है, रोना आता है जब देखता हूँ ये सब चीज़ें। सोचता हूँ कि यार किस देश में पैदा हो गया हूँ। क्या नंबर 5, क्या नंबर 4, ये हमारे लोग, ये हमारा देश। क्या समझ में नहीं आता क्या नो का मतलब? नो मतलब नो। हाउ हार्ड इट इज टू अंडरस्टैंड दैट। एक वुमन की फ्रीडम, एक लड़की की फ्रीडम सिर्फ उसकी होती है, एंड नोबडी हैज अ राइट टू टेक दैट अवे फ्रॉम देम। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पर, लड़कियों को रात को बाहर घूमने पर, लड़कियों को ड्रिंक करने पर। गोवा में 2 माइनस का गैंग रेप होता है, वहाँ की सीएम पूछते हैं व्हाई वर दे आउट लेट। कलकत्ता में हाईकोर्ट ने कुछ टाइम पहले एक आदमी वाज कन्विक्टेड ऑफ रेपिंग अ माइनर की पनिशमेंट को खत्म कर दिया था। एंड यू नो व्हाट दे सेड? They asked the girls to control their sexual urges, which has now been overturned by Supreme Court. अब हमारे जजेस ही ऐसे ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स पास करेंगे तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा? किससे मांगे जस्टिस? क्या जस्टिस? ये सिस्टम है, ये जुडिशियल सिस्टम है हमारा। How really I'm trying to understand like how hard it is to understand कि no मतलब no means no। मेरा सवाल इन लोगों से है, झारखंड में एक नन्ही सी 3.5 साल की नर्सरी स्कूल की बच्ची का बलात्कार किया जाता है बाय ओन स्कूल वैन ड्राइवर, उसकी क्या गलती थी? दिल्ली हाई कोर्ट होल्ड्स फादर गिल्टी ऑफ रेपिंग माइनर डॉटर फॉर ओवर 2 years, कॉल्स हिम मॉन्स्टर। वो लड़की तो रात को बाहर किसी के साथ नहीं थी। टीन अटेंडिंग रिलीजियस यात्रा, गैंग रेप इन तमिलनाडु, 7 अरेस्टेड। वो लड़की तो कोई क्लब्स या बार्स में पार्टी नहीं कर रही थी। हैदराबाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनवाइट 2 friends इंक्लूडिंग 1 childhood friend टू सेलिब्रेट न्यू जॉब। दी गैंग रेपर। ये लड़की तो किसी अनजान लोगों से नहीं मिल रही थी, दोस्त थे यार, न्यू जॉब सेलिब्रेट करी थी। 85-year-old वुमन डाइज आफ्टर allegedly being raped in UP। उन्होंने तो कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी थी। ये क्या नया एक्सक्यूज है? प्लीज़ बता दो यार, इज इट स्टिल हर फॉल्ट? On 9th August 2024, the night of the terror, a trainee doctor at Ajikar Medical College and Hospital, Kolkata, in her own workplace, after a long shift of 36 hours, decided to take some rest. Due to lack of space in the hospital, she decided to take rest in the seminar halls of the hospital. Just few hours before the incident, she had a normal conversation with the parents. She was doing perfectly fine. She was very much okay. वो बेचारी को तो पता भी नहीं था. She could have never imagined what she'll go through in the next few hours. Next morning, her parents were told that their daughter is very ill. Then the family was misled to believe that it was suicide. Her parents could not see their daughter's dead body for 3 hours. They were not allowed. It was only after they saw their daughter's dead body, her father, who saw her naked, was there standing and expressing disbelief of what just happened, or how the hospital thinks that it was suicide, when there are clear signs of brutal rape and murder. There were pieces of broken glass in her eyes. Imagine the specs you wear crushed into your eyes. Imagine your legs so forcefully pulled apart that your pelvic girdle breaks. Imagine your neck being strangled until you die with blood coming out of your mouth. The principal, the dean of the college, Dr. Sandeep Ghosh, called her psychotic. Ye tak keh diya, what was the girl doing in seminar hall at night? Police initially were calling this suicide. Dr. Sandeep Ghosh said on 12th August that he had resigned from services, but hours later he was posted as the principal of Calcutta National Medical College and Hospital. Just few hours later, renovation work started in the hospital, just few meters away from the crime scene. What was the reason? इतनी भी क्या जल्दी थी? Why were her parents not allowed to see their daughter's dead body for 3 hours? Why was it called suicide at first when there were clear signs of brutal rape and murder? ये renovation work कैसे शुरू हो गया? Who is the police or the government trying to hide? Why was there a 14-hour delay in filing an FIR? Sanjay Roy, name doesn't matter. ऐसे लाखों हैं हमारे देश में. Had been divorced multiple times according to the report.
and all due to physical abuse. He was a civic volunteer working in the Kolkata Police Welfare Department. In the past, he had beaten a pregnant wife, triggering a miscarriage. Few years later, the wife also passed away from the illness. एक लेडी अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके आती है ट्रीटमेंट के लिए. इसी वक्त संजय रॉय की उन पर नज़र पड़ जाती है एंड ये हेल्प करता है उनकी ट्रीटमेंट प्रोसेस में, दवाइयों तक के पैसे देता है. बट लेटर इन लेडी का प्रिस्क्रिप्शन में से नंबर निकाल लेता है एंड उसको कॉल कर हरास करता है. मजबूर होकर ये लेडी कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाती है. नाउ अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड, संजय रॉय पर हरासमेंट के चार्जेस लगने चाहिए थे. एंड अकॉर्डिंग टू सिविक वॉलंटियर प्रोग्राम, एक सिविक वॉलंटियर बनने के लिए आपके पास कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. पर लगता नहीं कि कायदे से रूल्स फॉलो किए गए थे, वरना शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता. एक आम सिविक वॉलंटियर जिसकी सैलरी सिर्फ मात्र 12,000 रुपये है, उसे अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, डेली पेट्रोल अलाउंस दिया जाता है. अगर ये किसी ऑफिसर को पसंद नहीं करता है तो उसका ट्रांसफर हो जाता है. मेरी नहीं, अकॉर्डिंग टू रिटायर्ड IPS ऑफिसर ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है. According to speculation, he is working under an influential leader of TMC government. According to Deputy Superintendent of Ajikar Medical College, Dr. Sandeep Ghosh had close relationship with Sanjay Roy. एक खास आदमी ऐसा बोला गया. And it's been speculated that Dr. Sandeep Ghosh had close relationship with TMC government. 14th August, एक peaceful protest organize किया गया था by the name Reclaim the Night. इस टाइम तक ये इंसिडेंट एक कंट्री वाइड इशू बन चुका होता है एंड काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट आउटसाइड आजिकर मेडिकल कॉलेज. इनमें से काफ़ी लोग बैरिकेड्स तोड़कर कॉलेज के अंदर घुस जाते हैं. CCTV फुटेज को डिस्ट्रॉय किया जाता है. द सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स 3rd फ्लोर तक पहुंच जाते हैं जहां ये इंसिडेंट हुआ था. क्या एविडेंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है. द इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी अच्छी रिपोर्ट प्रेजेंट करी है जहां ये बताया गया कि काफ़ी सारे TMC वर्कर्स या फिर जिनका लिंक है TMC पार्टी से वर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस मॉब लाइक अटैक. कैसे पहुंच गए थे ये 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल तक, वो भी इतने कोऑर्डिनेशन में. आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहली बार कंट्रोवर्सीज में नहीं आया. नितिश राजपूत एक चैनल है, आप जाके देख सकते हो, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है द हिस्ट्री ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज, द कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज. मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ. डॉक्टर संदीप घोष के अगेंस्ट काफ़ी एलिगेशंस हैं. इन 2017 he was allegedly arrested in Hong Kong for harassing a nursing student. He had corrupted the staff selection process, favoring few candidates over others. He allegedly ran a mafia-like structure inside the hospital. He was involved in corruption, financial misconduct, extortion of money, illegal commissions, manipulation of tenders for construction and other projects. A lot of these claims are made by ex-deputy superintendent of the hospital who was employed there for 16 years. Now, according to the report, he used to fail students, blackmail them, take commissions on the tender, and allegedly a similar lab to a nearby hospital costed 4 or 5 times to build an Ajikar hospital. He allegedly sold body organs in the black market. Why did the principal of the college have 2 personal bodyguards? Ajikar Medical Hospital and college के against porn और prostitution racket operate करने के allegations हैं. Allegations है of using dead bodies or pictures of students to create pornographic content. एक स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड के बर्थडे फोटोज were used to create such objectionable content, and when the student threatened to expose the racket, he fought for it, only to be found dead few days later in his room. ये victim के पेरेंट्स का एक वीडियो है ऑनलाइन कि सॉर्ट ऑफ लाइक एन इंटरव्यू. मैं वो शेयर नहीं करूँगा. बहुत जब भी मैं वो वीडियो देखता हूँ मुझे बहुत रोना आता है. समझ नहीं आता हाउ कुड समबडी गो थ्रू दिस. व्हाई वुड दिस हैपन. जो विक्टिम है उनके पास एक डायरी मिली थी, उसमें उन्होंने अपने लाइफ गोल्स लिख के रखे थे. शी हैड सच एस्पायरिंग गोल्स एंड शी कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली. उनके पापा एक टेलर हैं. दिस इज ऑनेस्टली अ ब्लैक स्पॉट ऑन आवर कंट्री. ये देश है हमारा. दिस इज वेरी वेरी सैड. यू वॉन्ट बिलीव दिस. Ram Rahim, a convicted rapist, was granted bail on the same date as this incident. इसके अंध भक्त अभी भी बाबा बाबा करके फॉलो करते हैं convicted rapist को. ये है हमारा देश. Things have gone really backward for our country. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ how a girl must feel alone around 9-10 boys. मैं अपने सराउंडिंग्स में ही देखता हूँ तो एक डर सा बैठ गया. I wouldn't want my family members to be around certain people जो मैं देखता हूँ जिनको डेली बेसिस पे आउटसाइड जो भी लोग होते हैं, छोटे मोटे लोग होते हैं, रास्ते पे दिखते हैं, राइट. I wouldn't want my family members to be around. Maybe that person might just be a poor guy. You know, that person might be a really good-hearted person. You know, हो सकता है शायद उसका खराब टाइम चल रहा हो. That's why he looks that way. उसका अपीयरेंस खराब है, but दिल का अच्छा इंसान है. You know, that's the thing. That most people are that way only. But एक डर सा बैठ गया. You know, and just think about it. Like I'm a male, and मैं ये ऐसा सोच रहा हूँ. तो think about how a woman must feel. It's really sad the way we are going forward. You know, इतने रेप्स हर दिन, इतने अब्यूजेस हर दिन. क्या डेवलपमेंट, क्या हमारे पॉपुलर सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं थप्पड़ मारना इज द वे टू शो लव. बीटिंग योर वाइफ इज अ वे टू शो लव एंड अफेक्शन. ये अभी की मूवी है, ये 2024 की मूवी है. 2024 के डायरेक्टर्स हैं. ये हम किधर जा रहे हैं, किधर डायरेक्शन है हमारा. दोस्तों एक रैंट वीडियो बिल्कुल भी नहीं है. मैं अपने यहाँ पे ओपिनियंस दूंगा, कुछ सजेशंस दूंगा एज टू हाउ आई बिलीव रेप्स कुड स्टॉप इन आवर कंट्री. So please carefully listen to this part. This is the most important part of this video. First, dehumanization of people. Few Hindu girls posted pictures with a Muslim friend, got rape threats. In the name of freedom, a
freedom of speech, a political leader named Nupur Sharma made some very objectionable remarks about Prophet Muhammad. She got rape threats. The irony here is that the people who are giving these threats consider themselves as children of God, whatever religion you belong to, is it Hinduism, Christianity, Islam, Jainism. You may not agree with my opinions on few things, but that doesn't mean you can dehumanize me or anybody to such an extent that giving rape threats or just having a thought about them getting raped doesn't make you feel bad anymore. We cannot do that. We have to look at people as people. Women are not inferior to us. They are people. They are not possessions. They are not objects. They are people. Second, uniform civil code. The law should be same for everyone. The law should be same for the rich, the poor, for a politician or for a normal person like me. The law should be same for everybody. इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली कानपुर में एक 15 साल का बच्चा अक्टूबर 2023 में अपनी स्पीडिंग कार से दो बच्चों को हिट करता है, उनकी मौत हो जाती है. बट बिकॉज ही वॉज अ जुवेनाइल, ही वॉज रिलीज ऑन बेल. ये फिर से मार्च 2024 में 4 लोगों की हत्या करता है एंड फिर से इसे बेल मिल जाती है. इन माई ओपिनियन, रिपीट ऑफेंडर्स whether juvenile or not should be treated as an adult and charged as an adult. थर्ड, कंप्लीट बैन ऑन pornographic content. काफ़ी लोग masturbation and porn को एक ही कॉन्वर्जेशन में रखते हैं, which is totally rubbish. कोलकाता केस के कन्विक्ट संजय रॉय के फ़ोन में काफ़ी अग्रेसिव पॉर्न मिली. वाई इज दैट मोस्ट रेपिस्ट आर पॉर्न एडिक्ट्स. इन सबसे भी पता है खराब क्या है? हमारे जैसे यूथ 18 to 24 year olds आर सर्चिंग फॉर कोलकाता केस विक्टिम वीडियो ऑन पॉर्न साइट्स. ये कुछ सर्चेज हैं, हम रीड कर सकते हैं. एक व्यक्ति जिनका नाम सौमिल है, ये इंटरनेट पर लिखते हैं, आई डोंट वॉच न्यूज़ बट जस्ट सॉ द पिक्चर ऑफ द गर्ल इन द रेप केस. No disrespect to her, but what happened to guys, man? Are you really that desperate to ejaculate inside a chick who isn't even that pretty? 10 guys down world. काफ़ी लोग बोलते हैं that education is the way to stop rape in our country. ये एजुकेटेड जनरेशन है हमारी कंट्री की. सौमिल, अपनी मदर या सिस्टर को जाके बताना. ये कमेंट पास किया था मैंने एक रेप विक्टिम के बारे में. ये मैंने पोस्ट किया था एक सोशल मीडिया पे अबाउट अ रेप विक्टिम. कुछ एक्ट्रेस, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिनका वीडियो लीक हो जाता है ऑनलाइन किसी भी कारण या वजह से, तो लाखों में सर्चेस होते हैं बाय आवर जनरेशन 18 to 26 year old एजुकेटेड जनरेशन. एक 15 साल की बच्ची का वीडियो लीक होता है, हज़ारों में सर्च आते हैं डेली टिल डेट. 15 साल की बच्ची का वीडियो. यानी सारे पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हम जैसे लोग ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, हम जैसे इंसान ही हैं ये भी. यानी जब ये अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं वापस, तो ऐसे कमेंट्स आते हैं उनकी पोस्ट पर. ये सारे के सारे पॉर्न एडिक्ट्स हैं. एंड आप गलत फहमी में मत रहना, ये एजुकेटेड जनरेशन है हमारी कंट्री की. टू एक्सप्लेन माई पॉइंट, आई वांट एक्सप्लेन फर्स्ट हाउ पॉर्न एडिक्शन वर्क्स. बिकॉज इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है. आई माई सेल्फ यूज टू वॉच पॉर्न ऑन रेगुलर बेसिस, बट एज सून एज आई बिकेम अ मेच्योर्ड इनफ पर्सन to understand how it was affecting my brain, I just completely turned it off. I just completely switched it off because I realized how bad an impact it was having in my mind. No matter how much I urge for it, I never watch it again. No matter how much I urge for it, and that's the thing. I want to share with you all. I want to share with you what I understood at that age. So let's just take an hypothetical example. For example, you're a man or a male, simply male. You start watching porn today, and you watch it every day for a few years. Okay. Now, the porn you watched yesterday may or may not excite you today. The porn you watched a week ago will most probably not excite you today. The porn you watched a month ago will 100% not excite you at all. And when that happens, what will you do? You'll move to more aggressive porn. And if you keep at it and don't quit, you don't quit in few years, you'll literally become mentally ill. You'll start enjoying the screaming of people. Your thoughts, all of your thoughts will be filled with perversion. The thought of you forcing onto somebody will not make you feel guilty. And this is what happens. Most rapists are not regretful of what they've done. So if you're somebody who watches porn, please, I urge you to stop. I urge you to quit. You are a far better person than that. So be that. Be that. My fourth suggestion is sexual education. I still barely remember that when I was in 5th or 6th class, तो हमारी classes and बाकी classes की girls को लेके गए थे, and there was a closed door discussion. And they came out. I asked, what was the discussion about? They didn't reply to me. I asked the teachers as well, like what was the discussion about? They didn't properly reply to me either. Most probably now when I think about it, it was about periods or good touch and bad touch type of stuff. So I still think कि boys को उसमें include करना चाहिए था. Sex education हमारी country में proper way में नहीं पढ़ाई जाती है. I think most of the sex ed stuff I know was being taught in 9th and 10th class in biology subject. I mean, which according to me is a bit too late, to be honest, because I remember when I was being taught all these sex ed stuff, boys used to laugh in the background, girls used to laugh in the background. I mean, I cannot properly imagine myself laughing
if I was taught all this stuff in the 3rd or 4th class, and I honestly feel bad even till date कि why boys were not included in the conversation when girls were being taught what's a good touch and bad touch, because boys को भी पता होना चाहिए what's a bad touch to a girl. My 5th point थोड़ा controversial है, but just hear me out. Legalizing prostitution. When was the last time you heard a sex worker filing assault charges towards a client? Probably never, right? Just because somebody is an exotic dancer or a sex worker, it doesn't give you the right over her or her body, you know. It doesn't give you the right to treat her as an object, treat her as if she's not human. In a country like ours, जहाँ पे most of the population is sexually deprived, the prostitution industry will continue to thrive. So why not legalize it? You know, give right to the sex workers. Make this a structured industry. You know, with this move alone, a lot of crimes will be solved. With this move alone, the sexually transmitted diseases will not spread as much as they are being spread right now. You know, just think about it. How many lives can be saved because of this? How many sex workers who are being exploited right now? They will be able to, file charges against their clients. They'll be able to, make a living out of an industry in the right way. My last and the most important point, actually, centralized special unit for rape cases, harassment, domestic abuse and missing persons report. Almost सारे ही cases में you will see police or the regarding authority have not taken timely actions. अगर harassment के अंदर संजय रॉय को बुक कर लिया होता एंड उसका सिविक वॉलंटियर की पोस्ट से उसको निकाल दिया होता, मे बी दिस डे वुडंट हैव कम. मे बी वो बच जाती यार, वो बेचारी, उसकी फैमिली को, शी वुडंट हैव टू सफर, द फैमिली वुडंट हैव टू सफर फ्रॉम ऑल दिस. बट हमारी कंट्री में कायदे से कोई चलता नहीं है, कोई रूल्स नहीं फॉलो करता. जब तक एक इंसिडेंट वायरल नहीं हो जाता है, तब तक एक स्पेशल फोर्स नहीं बनती, तब तक कुछ ढूंढना नहीं जाता है किसी को. 24 घंटे के लिए वेट करने के लिए बोला जाता है, जबकि पता है एक मिसिंग पर्सन को फाइंड करने के लिए या एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए 48 to 72 आवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. बट ये पता होते हुए भी कुछ होता नहीं है. लेकिन जब पूरा क्या बोलूँ मैं इस वर्ड को, पूरा कांड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तब इनकी 28-30 लोगों की स्पेशल फोर्स बन जाती है. तब फिर 4-5 दिन लगा लेते हैं, सारे पूरे शहर की CCTV ढूंढने में लगा लेते हैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए. क्या यही एक्शन पहले नहीं लिया जा सकता था? क्या यही एक्शन पहले नहीं ले सकते थे? इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है? जब आज पूरा दिन सबको पूरा देश क्रिटिसाइज कर रहा है, तब जाके ये एक्शन क्यों लेना पड़ रहा है? पहले क्यों नहीं ले सकते थे? वी नीड अ स्ट्रक्चर्ड special forces designated for this purpose only. A special force for rape, domestic abuse, harassment, to find a missing person, special unit designated in every state of every city. इन सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए the first 48 to 72 hours are the most crucial. तो जितने भी ये सारे एफर्ट्स हैं, सब उस टाइम में लगनी चाहिए. इन स्पेशल यूनिट्स का पर्पस होना चाहिए इन क्राइम्स को प्रिवेंट किया जाए. कोशिश करी जाए कि इन क्राइम्स को जितना हो सके प्रिवेंट किया जाए, ना कि वेट किया जाए कि क्राइम हो जाए फिर हम एक्शन लें. दोस्तों, ये इस वीडियो का एंड है. मुझे पर्सनली लगता है, इन माई ओपिनियन, दैट द सोल्यूशन दैट आई प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो can really help reducing these crimes. ख़त्म तो नहीं कर सकते, but reduce ज़रूर कर सकते हैं. So please share with your friends, your families, your regarding authorities, ताकि वहाँ तक मैसेज जाए.